Avinash Singh sir and our respected principal sir and to all my respected teachers. So you know that time to time we have been conducting in-house training program as it has been scheduled by CBSE. It has been instructed by CBSE to conduct this kind of programs. So in today's program we have got two of our most dynamic personalities, dynamic resource persons. So first of all I would like his feelings, his experience, his speech on the topic teaching strategies in science at secondary level. So Mr. Manish Mayank, you please come onto the dais. Of you present here, especially good afternoon to Avinash sir, respected principal sir, and my dear colleagues. I feel a great honor that I got a chance to speak about, share my views about teaching strategies. Is that what is teaching? Here the word is teaching strategies in science at secondary level. This strategy also involves in other subjects also. So I want to know that anyone can share his views on teaching. What is teaching? Share through this method. It's a kind of method also. Yeah. Thank you. Any other person? Arte sir? Okay, sir. Teaching is the process through which we can share our ideas and topic related, apart from the topic related, we can able to put up the knowledge inside the mind of the student by the using of the two-way communications, not one way. That is the same considered as the good teaching strategy for the particular classes and particular events. Thank you, sir. In simple words, we can say that transmission of positive knowledge, right? That is positive one. Knowledge is constructive also and destructive also, right? So transmission of positive knowledge from one person to another in form of anything, that is known as teaching, right? We can not only teach students but our colleagues also. We can teach them. Some positive I want to share with you all that human history become more and more race. Human history become more and more race between education and catastrophe. Right? Catastrophe means destruction. So अगर हम अपने आप को बहुत ज्यादा एजुकेट कर रहे हैं तो ये एक रेस हो गया है किसके बीच में? एजुकेशन के बीच में और डिस्ट्रक्शन के बीच में। कि अगर लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं तो कोई पॉजिटिव वे में भी जाता है एजुकेशन को लेके और कोई नेगेटिव वे में जाता है। ह्यूमन काइंड को आप जितना ज्यादा बेनिफिट देंगे दैट इज योर पॉजिटिव नॉलेज। अगर उस नॉलेज को आप गलत तरीके से लगा रहे हैं दैट इज डिस्ट्रक्टिव वन। तो ये एक एजुकेशन एक रेस हो गया है। एजुकेशन साइंस एजुकेशन जनरली एक रेस हो गया है कैटास्ट्रॉफी के बीच में और ह्यूमन लाइफ के बीच में। तो ये एक हमारा बात था, एक कोड था। अब आगे बढ़ते हैं। Proceeding to what is the purpose of teaching science? कि हम कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाते हैं, if we want to teach the students anything, then the most important thing is the purpose. What is the purpose of teaching science? या teaching any subject? To make them literate, or to make them educated. There are one major difference between literate and educated. Literate means you gain knowledge about subject matter, that is literacy. But educated means you have to know about moral values also. So nowadays moral values जो है सो वो गिरते जा रहे हैं लोगों के बीच में से। इवन हमारे सोसाइटी में भी moral values की कमी होती जा रही। तो we have to make students understand about the moral values also. So this is the main thing. So what is the purpose of science? The basic purpose of science is to introduce students about the technology. कि साइंस को हम लोग टेक्नोलॉजी में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अगर हम कहते हैं कि रॉकेट प्रोपल्शन थ्योरी हो रहा है कि अगर रॉकेट में फ्यूल यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी में लाना दैट इज द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग साइंस टू स्टूडेंट्स। कि वो किस तरीके से उस सब्जेक्ट को अपने डेली लाइफ ऑफ टीचिंग साइंस टू द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बात है कि टीचिंग साइंस की तीन तरीके से हो सकता है। एक प्राइमरी लेवल पे होता है। प्राइमरी लेवल पे क्या होता है कि हम उनको सब्जेक्ट मैटर में इंट्रोड्यूस करते हैं बस
कि हमारे चारों तरफ लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। हम उनको बताते हैं, कहते हैं कि डायग्राम बना के लाइए कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। तो बच्चे देखते हैं कि हम उनको बताते हैं कि जो सांस ले सकता है या जो मूव कर सकता है। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपसे पूछेंगे कि सर ये जो पेड़ है ये तो एक ही जगह खड़ा है, ये कैसे सांस लेता है। तो फिर उनको हम कोई अपर प्राइमरी लेवल पे आके हम उनको बताते हैं कि प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। तो हम कहते हैं कि इसमें ये क्या करते हैं कि दिन के टाइम में CO2 इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर मैकेनिज्म क्लास 10th में पढ़नी होती है। और उससे भी ऊपर जाएंगे तो और भी उसके डेप्थ में जाके बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पता चलती है लोगों को। तो दैट इज द बेसिक थिंग। हमें क्या करना होता है टीचिंग में कि उनको जो कंस्ट्रक्टिव टीचिंग है उनमें क्या होता है कि जो बेसिक चीजें हैं, पहले अगर हम टॉपिक स्टार्ट करें तो उनको कहें सोचने के लिए कि आप प्रीवियस नॉलेज क्या लेके आए, क्योंकि हम पढ़ा रहे सेकेंडरी लेवल की बात। तो ऐसा नहीं कि आप जाइए स्टार्ट कर दीजिए चीजों को, पहले आप जाइए क्लास में और उनसे पूछिए कि आप प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में क्या जानते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे क्लास में। इसमें क्या होगा बच्चों को कि सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, दे आर एबल टू स्पीक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या मम हो जाते हैं बीच में, अगर उनको पूछा जाए, खासकर बैक बेंचर्स या मिडिल में रोज में जो बैठे होते हैं वो चुप हो जाते हैं। आप उनसे आइडिया लीजिए कि आप अच्छा ठीक है फोटोसिंथेसिस के बारे में आप क्या जानते हैं, वो बताएगा। तो आपका ये काम है कि आप उनको किस तरीके से मोटिवेट करें कि वो आपके साथ टू वे कम्युनिकेशन लगाएं, क्योंकि टीचिंग इज टू वे कम्युनिकेशन। अगर सिंगल वे कम्युनिकेशन है दैट विल बी द ट्रेडिशनल अप्रोच जो पहले के जमाने में हुआ करता था। वहां पे टीचर एज अ डायरेक्टर बिहेव करते थे, मतलब वो आए, उन्होंने अपना लेक्चर दिया, उन्होंने पढ़ाया, दैट इज इट। उसके अलावा स्टूडेंट के पास वो उतना ज्यादा सोचे और समझने का टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन आजकल के जमाने में क्या हो गया, टीचर कम और इसको गाइड कह सकते हैं और फैसिलिटेटर कह सकते हैं, वो गाइड की तरह काम करता है टीचर। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी चीज हम पढ़ाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, इधर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, कोई भी चीज, उसके पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो हाउ टू एंटर इन द क्लास, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि हम क्या करेंगे, अपने आप को वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप बच्चों को एक ओपन क्वेश्चन, आप ओपन हाउस कर सकते हैं कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम उस टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज लेके आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें खुद को प्रिपेयर करके रखना होगा। यस, टुमारो आई विल इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हमें उसके बारे में ऑलरेडी पता है। लेकिन साइंस में क्या होता है, हर डे कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। अभी 2 साल पहले की बुक को अगर आप ले तो उसमें 115 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं टोटल, लेकिन अगर अभी मैं बात करूं उसका तो 119 एलिमेंट्स हो गए। तो देयर आर 4 मोर एलिमेंट्स। तो डे टू डे इसमें क्या हो रहा है, एडवांसमेंट आ रहा है टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी बदल रही है, साइंस बदल रहा है, तो हमें भी बच्चों को उसी तरफ मोटिवेट करना है कि इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ड्रास्टिकली और बहुत रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें भी उसी तरीके से अडेप्ट कराना है बच्चों को। उसी की स्ट्रेटजीज के बारे में आज को डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला चीज क्या है, अगर मान लीजिए मैं नेचर के बारे में पढ़ा रहा हूं तो ऐसी चीजें भी आएंगी जो नेचर से रिलेटेड ना हो, वो कुछ और भी पूछ सकता है, तो आपको उसके बारे में प्रिपेयर्ड रहना है। अब ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि आजकल इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है कि बच्चे जाके तुरंत उसका आंसर गूगल पे सर्च कर लेंगे, और आप अगर गलत हो गया दैट टाइम, वो आपके लिए उसका रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा कि ये टीचर ने हमें गलत जवाब दिया, अब आपसे वो कटना शुरू कर देगा। या हो सकता है 2-3 इस लेवल के क्वेश्चंस आपको बुला देगा जिसमें आपको बहुत परेशानी होने लगेगी। इसीलिए सबसे पहले क्या है कि हमें खुद को प्रिपेयर करना होगा उस टॉपिक के लिए कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। पहले खुद अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस व्हिच हैज टू बी आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। कौन सा ऐसा पॉसिबल क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तभी हम उसको जाके अच्छे से बता सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को। दूसरी बात है कि जब हम क्लास में एंटर करें तो फर्स्ट थिंग इज दैट पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। एक स्माइल के साथ क्लास में जाना चाहिए, नॉट लाइक कि हम जाके, ऐसा होता है कि इन सब चीजों में साइंस सब्जेक्ट या अदर साइंस के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इंटर कनेक्शन होता है, एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से कनेक्शन। अगर वो टॉपिक को बच्चा उस दिन नहीं समझ पाएगा, आई गारंटी कि नेक्स्ट टॉपिक में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा आपके सब्जेक्ट में।
वो क्या करेगा, खिड़की के बाहर देखेगा, दीवार देखेगा, या किसी बच्चे के साथ बात करेगा, या किसी को कुछ करेगा, या हो सकता है आपका डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट है कि वो आप ही की तरफ देखता रहेगा, वो फिजिकली प्रेजेंट रहेगा क्लास में लेकिन मेंटली कहीं और रहेगा, क्योंकि उसको वो चीजें समझ में नहीं आ रही। उसके अलावा प्लेन लैंग्वेज, जो तमिलनाडु गए हैं और वहां पे हम क्लासेस ले रहे हैं, तो महाराष्ट्र में ऐसा नियम है कि अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में, तो आपको मराठी आनी चाहिए, दैट इज मस्ट फॉर यू, क्योंकि वहां बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो सब मराठी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो क्या होता है कि चीजों को समझाने के लिए, जैसे हम, क्योंकि हम हिंदी बेल्ट में रहते हैं, तो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में क्या, एक इंग्लिश यूज करेंगे, एक हिंदी यूज करेंगे, अदर देन दैट हम कोई ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, है ना। हम अपने घर का कोई लैंग्वेज जो घर में स्पीक करते हैं, मैथिली बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मगही हो गया, अंगिका हो गया, बच्चे दे आर लाइक आयरन पीसेस, राइट। यू हैव टू बी उसके पास जाना होगा आपको, फर्स्ट मूव इन द क्लास, राइट। जब आप क्लास में मूव कर लीजिएगा, देन क्या होगा कि आप जस्ट लाइक अ मैग्नेट है उसके साथ। आप देख सकते हैं उसने अपना नोटबुक निकाला, उसने अपना टेक्स्ट बुक निकाला कि नहीं निकाला। अगर आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड तक सीमित हो जाएंगे तो क्या होगा कि बच्चा सिर्फ अपना कॉपी खोल के रख लेगा, या फिर नहीं भी खोल सकता, हाँ सर हम लिख रहे हैं, या आप बोलिए हम सुन रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपके साथ प्रॉब्लम आने लगी, फिर आपको इरिटेशन होगा, अरे तुम समझ क्यों नहीं रहा, हम तो इतने आसानी से समझा रहे हैं तुमको, राइट। फिर क्या होगा कि आपके और उसके बीच जो ब्रिज है वो बढ़ता जाएगा। आप समझिएगा कि वो बच्चा जो है सो अच्छा नहीं पढ़ता, उसको ये बेकार है ये वो, लेकिन उसका हो सकता है कुछ और दिमाग में चल रहा हो, तो उसको जो है सो कंफर्टेबल करने के लिए जस्ट गिव 5 मिनट्स इन द क्लास, दैट्स इट। 5 मिनट के बाद आप शुरू कर दीजिए, लेकिन शुरू करिए तो कहां से, जहां पे लास्ट आपने फिनिश किया था उसको 5 मिनट्स रिकैप कर दीजिए। जैसे अगर हम कोई टीवी का सीरियल का एपिसोड भी देखते हैं तो उसमें सबसे पहले रिकैप आता है कि हमारा कल क्या हुआ था, और उसके बाद बोलते हैं अब आगे, राइट। वह उसी तरीके से यहाँ भी क्या होता है कि 5 मिनट्स हम क्या करें, रिकैप करते हैं, देन हम आगे चलें। व्हाट इज द mantra for student success? What is the mantra? Can anyone say what is the mantra for student success? To communicate in a better way in this part. Okay sir, another, anyone else? To take part in the teaching learning process. Yeah, that's To take part in the teaching learning process quite attentively. And next thing is that the success or the mantra for the students, that will be dependent on the various types of the steps. Whenever we want to get more knowledge to the students, then we have to do in the learning stage, the first which topic is dealing the particular times, then the particular initial things, give the examples. With the examples we have to integrate to the students. Example from our surroundings. All surroundings. Okay. You have to put up in your strategy. That would be better for the success mantra for the students. Okay, thank you sir. Picture related activity or pictures. Like visual based learning, huh? Yes. Okay, thank you so much. So yes, these things are another thing. One thing, the most important thing is effort and smart work. Like all are doing hard work, right? लेकिन आजकल के टाइम में ना there is much difference between hard work and smart work, right? हमारे इधर के बच्चे जब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, हम कहते हैं कि 11th-12th में उनको कोटा भेज देते हैं या फिर कहीं बाहर भेज देते हैं किसी और जगह। वहाँ क्या होता है, वहाँ स्मार्ट वर्क कराया जाता है कि वही क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, अगर मान लीजिए हमारे पास 50 क्वेश्चंस है टोटल, वी हैव टू डील विद 50 क्वेश्चंस, और उसमें जो इधर के बच्चे जो नॉर्मली 11th-12th पढ़ते हैं वो 10 क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि उनको एक बताया गया है करिकुलम कि हाँ भाई आपको ये स्टेप करके बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और वहां पे क्या किया जाता है, उसी क्वेश्चन को कम टाइम में आप करिए, तो जब तक ये बच्चा 1 करता है वो 4 कर देता है, क्योंकि उनको शॉर्ट ट्रिक, उनको जो है सो उसको इस तरीके से आइडियाज बताए जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स में वो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए उसी को कहा जाता है स्मार्ट वर्क। तो बी स्मार्टर एंड पुट योर एफर्ट इन दैट वर्क, व्हाटएवर यू आर डूइंग, उसमें फुल एफर्ट देना चाहिए बच्चे को। तो वो एक हमारे हिसाब से हमारा ये परसेप्शन है कि ये एक वे है बच्चों को सक्सेस की तरफ ले जाने का। अब है कि टीचिंग स्ट्रेटजीज इन साइंस। अब हम इस मेन टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग साइंस इन द क्लास एट सेकेंडरी लेवल। तो फर्स्ट थिंग जो बहुत पहले से चलता आ रहा है और अभी भी फॉलो होता है हमारे इंडिया में, इसको अभी भी फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, तो वो है ट्रेडिशनल अप्रोच।
क्योंकि हमारे इधर रिसोर्सेज की थोड़ी सी स्कार्सिटी है। रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है मींस हम किसी चीज को टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक बहुत सारे स्कूल है हमारे इधर, बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है कि स्मार्ट क्लासेस होते हैं। हमारे यहाँ भी स्मार्ट क्लास है तो हम कभी उसका यूज कर लेते हैं स्मार्ट क्लास का, कभी नहीं कर पाते ड्यू टू सम करिकुलर एक्टिविटीज, ड्यू टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जामिनेशन। कि इतने एग्जाम्स होते हैं कि उसका सबसे बड़ा बात है कि एग्जाम्स हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा होता है सारे स्कूलों में, नॉट ओनली इन एनी सिंगल स्कूल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्कूल, सारे स्कूलों में एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि पहली बात तो सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसके लिए भी टीचर एफर्ट करता है। अब क्या है कि लोगों को स्मार्ट क्लास ले जाना है किसी चीज को पढ़ाने के लिए। सपोज मैं अभी पढ़ा रहा हूँ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्लास 9th में, तो उसमें क्या है जब तक बच्चे को विजुअलिटी नहीं होगी उसकी कि यहां से चला ये पार्टिकल इधर तक आया, अब हमने उसको इमेजिनेशन से विजुअलाइज करा दिया, देखो ये यहां से है, यहां आया, इधर लाके स्ट्राइक किया। वहां पे अगर वो चीज प्रेजेंट होता तो क्या होता है कि बहुत बेहतरीन होता। दैट इज मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अभी भी चलता है ऐसा कि टीचर गए क्लास में, बस उन्होंने पढ़ाया, कुछ क्वेश्चंस पूछा, दैट्स इट, ओवर। वहां पे टीचर जो है वो इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट का नहीं हो पाता ज्यादा, बस फर्स्ट बेंचर होते हैं या 2-3 बेंच के बच्चे जवाब देते हैं, दैट्स इट। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है उसके लिए। तो रिसोर्सेज की कमी एक हमारे यहाँ जो है सो बहुत ज्यादा इसका मेन फैक्टर है कि बच्चों में वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाता। अभी भी हम इस फील्ड में बहुत सारे, अगर आगे चल के बच्चे रिसर्च करते हैं तो पीएचडी में अभी भी लोग माइक्रोन रेंज में ही बात कर रहे हैं। माइक्रोन रेंज में मेरे बहुत सारे कलीग्स ऐसे हैं। वजह सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस तरीके का टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इंडिया में अपने अभी तक नहीं हुआ है। लोग माइक्रोन रेंज में ही बात करते हैं, 10⁻⁻⁶ मीटर के रेंज। अब अगर हम दूसरे चाइना में देखते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हैं। क्लासेस में उनके सामने लैपटॉप रखा होता है या फिर उनको जो है सो कुछ ऐसी चीजें दी रहती है, मोबाइल खराब करके दे दिया, बोले मोबाइल बना। हमारे यहाँ क्या है, मोबाइल करने का, सही करने का कोर्स होता है। वो कब होता है, जब हम 10th कर लेते हैं, डिप्लोमा में किया जाता है, या 12th कर लेते हैं तो मोबाइल सिखाने की बात होती है। तो वो बच्चे बचपन से ये करते आ रहे हैं, इस वजह से उनका एडवांसमेंट इसमें क्या है, बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ इसकी चीज की बहुत ज्यादा कमी है, इस वजह से ये चीज सही से हो नहीं पाती। तो दैट इज द मेन थिंग कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी अभी उतनी डेवलप नहीं हो पाई है। बिगिन एंड स्टे फोकस्ड ऑन द बिग पिक्चर। बिग पिक्चर मतलब ये कहने का मतलब हुआ मेरा कि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए, हमें उसको बिग पिक्चर के लिए मतलब बड़े चीजों के लिए करना। जैसे अभी हम ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से वे हमारा हो कि वो चीज उसको 9th में अगर पढ़ना है तो 11th तक उस चीज को याद रखना चाहिए। तो याद कैसे रहेगा, याद रखने का सबसे अच्छा जो स्ट्रैटेजी है वो है स्पाइरल लर्निंग। स्पाइरल लर्निंग मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर आप किसी चीज को इस मंथ पढ़ा रहे हो, देन रिपीट इट अगेन इन द नेक्स्ट मंथ। Like if I am taking class in 9th, my topic is valency, तो अगर मैं वैलेंसी क्लास चैप्टर 2 में भी मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूँ चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में भी मैं वैलेंसी बताता हूँ और चैप्टर 4 में भी वैलेंसी बताता हूँ। भले मैं ये बोल देता हूँ कि मैं अगले चैप्टर में डिस्कस नहीं करूंगा, बच्चों के लिए अरे नेक्स्ट चैप्टर में भी है, हमको ये पढ़ना है, रिवाइज करके लाना है। अब जिस दिन मेरा वो क्लास है, एक दिन पहले मैं उनको बोल दूं कि हाँ भाई आप ये पढ़ के आओ, तो दैट इज स्पाइरल टीचिंग। एक पीरियड लगेगा, उसको आप रिकैप कर दो, लास्ट मंथ में मैंने क्या किया। उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ ऐसा कहावत है कि अगर करते करते लोगों को चीजें आने लगती है। लाइक अगर हमारे पास हमें कोई मैथ्स का थ्योरम नहीं आता, हमें नहीं पता चलता, कबूतर लिखो, तो बच्चा सीख जाता है। जस्ट लाइक दैट हमारे भी साइंस में क्या होता है कि अगर हम चीजों को रिकैप ना करें तो फिर वो बच्चे क्या हम भूल सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, अगर हम उसके कांटेक्ट में ना हो तो हमें भी वो चीज याद रखने में और सॉल्व करने में परेशानी आने लगेगी, वो हमसे भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए नॉलेज के साथ जितना कांटेक्ट में आप रहें, जितना आप रहे उससे ज्यादा बच्चों को रखें, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम स्पाइरल लर्निंग करवाएंगे उसको। इवन की प्राइमरी क्लासेस में ये चीज होता है कि आज हमने उसको टेबल दिया 2 से 20 तक लिखने के लिए, नेक्स्ट मंथ वो याद कर पाया, फिर हमने दे दिया लिखो 2 से 20 का टेबल। सेकेंडरी लेवल में क्या होता है कि लोग आगे बढ़ने की चीजें ज्यादा सोचते हैं और जो उनकी पीछे की प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं तो प्रीपोजिशन को नेक्स्ट मंथ भी एक पीरियड लगेगा, थोड़ा सा रिकैप करते बच्चों के दिमाग में आ जाएगी बात।
तो ये मंथ दर मंथ क्या होगा ना, स्पाइरल लर्निंग करने से ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है चीजों को याद रखने। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके लिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होगा, तो जैसे कोई चीज अगर हम कोई चीज अपना पॉइंट रख रहे हैं, आज मैं अगर कोई टॉपिक नया पढ़ाने जाऊं तो उसके लिए मैं बच्चों को कह दूं कि कल मैं ये चीज पढ़ा के मतलब पढ़ाऊंगा, आप लोग इसको पढ़ के आइएगा। हो सकता है पहले दिन 5 बच्चे जवाब दें, तो फर्स्ट क्लास में चीजों को शुरुआत ना करें, उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू जिसको कहते हैं वो देके छोड़ दें। अब लेट द स्टूडेंट्स थिंक अबाउट दैट कि सर ने ये पढ़ाना है, भाई हमें क्या करना है, तो हमको इसको पढ़ के लाना है। हो सकता है फर्स्ट डे 5 बच्चे पढ़ के आएंगे, आप उसको ओवरव्यू दे दे, नेक्स्ट डे उन 5 बच्चों को छोड़ के नेक्स्ट 5-10 बच्चों से पूछ ले ओरली कि हाँ भाई तुमने क्या पढ़ा इसमें। तो दैट्स द थिंग, दैट इज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बार-बार कह सकते हैं भाई तुम प्रीवियस नॉलेज से क्या सीखे हो, तो तुमको ये चीज करना है। अगर हम मान लीजिए कोई चीज मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको प्रीवियस नॉलेज तो होगा क्योंकि मैं सेकेंडरी लेवल में पढ़ा रहा हूं, तो 1 to 8 तक वो कुछ तो पढ़ा होगा उसके बारे में, हाफ फिल्डर। तो किसी से पूछे तो 2 तरह का आंसर हो सकता है, एक कहेगा कि आधा ग्लास पानी है, एक कहेगा आधा ग्लास खाली है। तो आधा ग्लास खाली इज नेगेटिव अप्रोच, बट आधा ग्लास पानी इज व्हाट, पॉजिटिव अप्रोच। तो हमें जब भी बोलना है स्टूडेंट के साथ, जब भी कन्वर्सेशन करना है, बी ऑलवेज पॉजिटिव। थैंक यू मैम, अच्छा वर्ड था। थैंक यू मैम। तो क्या है कि हमें उसको इस तरीके से पॉजिटिव रहना है। अगर हम पॉजिटिव होगा, दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट, दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। और इसके बाद मैं बात करूंगा इंस्ट्रक्शनल अप्रोच के बारे में। इंस्ट्रक्शनल अप्रोच होता है कि किसी भी, जैसे मैं साइंस पढ़ा रहा हूं तो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग लाना सीखना है बच्चों को। साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग तभी होगा जब उनको उस कंटेंट के बारे में चीजें अच्छे से पता हो। अगर चीज उनको नहीं मालूम है, इस कंटेंट का बाद उनको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तब उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग कि इस अप्रोच में क्या होता है हमारा कि हम बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को हम जो साइंटिफिक वेज होता है थिंकिंग का, हम वो उसको टीच करते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं अपने व्यूज कि इसको किस तरीके से करना है। अब नेचर के साथ अगर रिलेट करते हैं, सपोज मैं वाटर साइकिल पढ़ा रहा हूं अगर, या कोई भी वाटर साइकिल पढ़ा रहा है, तो वाटर साइकिल पढ़ाने में ये भी कह सकते हैं, देखो यहाँ इवेपोरेशन हुआ, तो आप अपना ही बगल से एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे यहाँ पे पानी था पहले भरा पड़ा हुआ, या बहुत ही खाली था ये, तो फिर हम कह सकते हैं देखो बारिश हुई, पानी इवेपोरेट हो गया। तो ये एक क्या है कि हम अपने नेचर से उसको बता सकते हैं, रिलेट करा सकते हैं कि इस तरह की चीजें होती है। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि मॉर्निंग टाइम में ही वाटर क्यों दिया जाता है प्लांट्स में, ये भी बहुत सारे लोग इवनिंग में भी देते हैं, बहुत सारे लोग मॉर्निंग टाइम में भी वाटर मतलब पेड़ में वाटर डालते हैं। क्यों, तो कहेगा वहां पे कि क्योंकि क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, तो पानी का लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमें बच्चों को समझाना है, दैट इज साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग। तो टीच स्टूडेंट्स लाइक अ साइंटिफिक वे। अनदर थिंग कि स्टूडेंट्स को डिस्कशन में प्रमोट करना है। डिस्कशन कैसे कर सकते हैं, तो जब उनको सही से उस चीज के बारे में नॉलेज होगा तो आपके साथ वो डिस्कस करेंगे 1 to 1। किसी को बोलिए क्या डाउट है, हाँ भाई तुम बोलो क्या सीखा इससे, तो वो डिस्कस करेगा। हो सकता है सारी बातें उसको ना समझ में आई हो, वो उसका 50% तो सीखेगा, 50% बोलेगा, 20% सीखा 20% बोलेगा, तो उसको आप अप्रिशिएट करो कि 20% अगर वो बोला है तो नेक्स्ट डे वो ऐसा करे कि 20 से 40 हो, 40 से 60 हो। ऐसा नहीं हो सकता। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी बच्चे का आकलन करना बहुत ही खराब बात होता है। अगर सिर्फ हम ये देख के सोचें कि इस बच्चे को 80 में 80 आया, 80 में 70 आया तो बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है वो सिर्फ हमारा काम है उसको क्या करना, मॉनिटर करना, और उसको टाइम टू टाइम जो है सो बताना कि आप किस चीजों में आप कहां लैग बिहाइंड हो रहे हैं, आपको ये चीज बताना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम चलेंगे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पे। तो हमने कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया, जनरली हमारे यहाँ सारे लोग करते हैं कि कोई टॉपिक पढ़ाते हैं और उसके बाद उससे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना चंदन सर, ऐसा करते हैं ना। कोई क्वेश्चन पढ़ाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन राइज करते हैं बच्चों से। अगर क्वेश्चन का जवाब उसने नहीं दिया, देन हम क्या करते हैं, देन हमारा अप्रोच उसके लिए क्या होता है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं किसी स्टूडेंट से और वो उसका रिप्लाई ना करे, देन हमारा अप्रोच कैसा होता है, मतलब जनरली कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, कैसा होता है चंदन सर, कैसा होता है आपका अप्रोच? दूसरे से फिर पूछते हैं, उसको छोड़ देते हैं जी, उस बच्चे को छोड़ देते हैं। दैट इज द डिफॉल्ट। वहीं पे गड़बड़ी है, गड़बड़ी है सर, उसको छोड़ना नहीं है, उसको मॉनिटर करना, आपको बताना है। वही क्वेश्चन आप दूसरे से ना पूछे,
आप उसको मॉनिटर करें, आप उसको काउंसलिंग करें कि तुम कैसे सही कर सकते हो इसको, देन वो आपके साथ इंटरेस्ट लगाएगा। क्योंकि गिव एंड टेक की बात होती है हर एक जगह, किसी भी जगह जाओ आप, गिव एंड टेक की बात होती है कि आप उसको रिस्पेक्ट दो, सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा, आप उसको समझाओ, देन ही विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट यू। अगर आप उसको नहीं समझाते हो, आप उसको छोड़ देते हो, वो क्या सोचेगा, सर तो हमको छोड़ देते हैं, छोड़ो नहीं पढ़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे, दूसरा चीज है, दूसरा कर लेंगे। इससे क्या होता है, बच्चे कटने लगते हैं हमसे, और फिर क्लास में हम जाके बताते हैं, 5 चीजें बताते हैं, 5 बच्चे ही समझते हैं, बाकी सारे के सारे नील बैठे रहते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में, तो उसको उसके बारे में प्रॉपर्ली समझाना है। हो सकता है आपका कोई पीरियड लीजर हो, उसको बुला ले क्लास में, या ब्रेक में बुला ले और उसको ब्रेक में समझा दे। तो ये एक अच्छा वे है, अच्छा टेक्निक है क्या, स्टूडेंट के साथ जुड़ने का। तो जितना आप अपना कनेक्शन उसके साथ बना के रखिएगा, उतना आपके लिए फायदेमंद है और स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है। क्या किसी को प्राउड फील होता ही होगा सबको कि किसी के बच्चे अगर अच्छे करते, जैसे हमारे बच्चे अभी स्पोर्ट्स में अच्छे कर रहे हैं हमारे स्कूल के, तो सबको प्राउड फील होता है कि चलो भाई हमारे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर बच्चे स्टडीज में भी अच्छे हो तो प्राउड फील होगा। हम ये नहीं कह सकते ये बेकार लग रहा है, इसको कुछ नहीं आता वो चीज कहने के बजाय अगर मैं उसको बुला के और उसको समझाऊं और उसको मोटिवेट करूं पढ़ने की तरफ, तो फिर क्या होगा कि हो सकता है वो बच्चा धीरे धीरे हमसे जुड़ने लगे। एनवायरमेंट रहता है कि बच्चे पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 9-10 तक बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छा आगे जाएगा, लेकिन फिर क्या होता है 11-12 उसके बाद हम देखते हैं तुम यही पे है, तुम कुछ नहीं किया, ट्राई नहीं करेगा बनाने का। तो हमें क्या करना है, आजकल स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हो गया, उसको चीजों में इन्वॉल्व करें कि तुम करो ये क्वेश्चन, ये तुम्हें करना, बस आप उसको आइडिया दें कि कैसे किया जाता है, देन वो खुद ब खुद करेगा, राइट? दैट इज द अनदर थिंग। अब इसके बाद है हमारा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो साइंस में लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होता है और हाइपोथेसिस होता है, राइट? उसको लॉज और प्रिंसिपल को तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाइपोथेसिस को प्रैक्टिकली प्रूफ किया जाता है। सेवरल लॉ, जैसे न्यूटन साहब ने लॉ दे दिया, मैथमेटिकल प्रूफ है उसका, राइट? उसका हम अपने डेली लाइफ से प्रूफ बता सकते हैं। उन्होंने उसको लॉ को डेली लाइफ से प्रूफ किया, मतलब यहाँ पे ये डेस्क रखा हुआ है, हमने इस पे फोर्स नहीं लगाया, डेस्क यहीं का यहीं रहेगा। आप छोड़ दीजिए इसको सालों साल, 10 साल 20 साल छोड़ दीजिए, धूल जम जाएगी इस पे, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हो सकता अपनी जगह से, जब तक कि आप उस पे एक्सटर्नल एफर्ट ना लगा। वो भी कैसा, अनबैलेंस्ड होना चाहिए। तो बैलेंस नहीं, बैलेंस रहेगा तो फिर वो अगर एक छोटे से बच्चे को, 2 साल के बच्चे को भाई इसको खिसकाओ, वो उससे नहीं खिसकेगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा फोर्स लगा नहीं पा रहा है जिससे वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो न्यूटन साहब ने वही बताया कि हमें क्या करना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स करना चाहिए, तो वो लॉ है उनका। तो साइंस में लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होता है और हाइपोथेसिस होता है, और जो हाइपोथेसिस होता है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात सिर्फ जीजे स्टोनी ने कही होती कि जीजे स्टोनी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी होता है एटम में, उन्होंने नाम दे दिया, तो उनके हाइपोथेसिस को प्रूफ करना पड़ा थॉमसन को, और सारी क्रेडिट मिल गई किनको, थॉमसन को। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके हाइपोथेसिस को प्रूफ किया था। एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने उनके हाइपोथेसिस को प्रूफ किया था। ऐसा नहीं कि हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने नहीं कहा, हमारे भी ऋषि थे, महर्षि कणाद, उन्होंने कहा था। उससे भी पहले बहुत सारे ऐसे इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने कहा था कि एक कोट है, हिंदी में कहा जाता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। मींस हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ। ये हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कार्बन है, क्योंकि ये 5 चीजों में मेनली कार्बन होता है। तो कार्बन से बना हुआ है, इसको प्रूफ किया था साइंटिस्ट लोगों ने, तो नाम उनका मिल गया। लेकिन क्योंकि हम उसको पढ़ते हैं तो इंडियन फिलोसफर्स की भी बातें हम लेते हैं उसमें, कि इंडियन फिलोसफर्स ने क्या कहा, उसके बाद डाल्टन साहब ने क्या कहा, तो हम उनका नाम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके एक्सपेरिमेंटली बताया। जैसे हम अगर साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हर चीज में एक्सपेरिमेंट कराते हैं। सपोज अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा रहा हूं, तो मैं बच्चों को लैबोरेटरी लेके जाऊंगा ये करवाने के लिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एग्जिस्ट करता है, कि मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं। टेक्निक है वो है हमारा एक्सपेरिएंशियल लर्निंग।
एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को समझाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई चीज पढ़ा रहे हैं, जानबूझ के आप गलती करें, बोर्ड पे कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो आप उसको ऐसा ना कि आप सही से सब कुछ बता दें, फिर उनका अटेंशन रहेगा कि आप जानबूझ के गलत पढ़ाओ। अब ऐसा नहीं कि डेली गलत पढ़ा दो, किसी चेक करने के लिए 1-2 दिन आप गलत पढ़ा दो, आप गलत पढ़ाओ, देखो कितने बच्चे आपको कैच करते हैं, रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं। हाँ, नहीं, आप साइंस में बता रहा हूं तो आप सही वर्ड यूज कर रहे हैं, रिएक्ट करते हैं। हमारा एक्शन है तो उनका रिएक्शन है, ये बात। तो क्या है कि हमारा जो एक्शन है वो हमने हो गया, हम देख लिया आप गलत किए, सर आपसे गलत हो गया, वहां गलत, कहाँ गलत हुआ, अच्छा ये गलत है, क्या सही होगा बताओ, वो खुद आएगा, हाँ आओ बोर्ड पे करो, या फिर किसी और को बोले हाँ जी बताओ क्या सही होगा यहाँ पे, अगर मेरे से गलती हो गई है तो, या चेक करके बताओ कि सही है मैंने गलत किया है कि नहीं। तो चेक करने के सोर्सेज होते हैं बहुत सारे, या आप बोलो कि कल बताओ, कल करके आना कि मेरा गलत है या सही, मेरा आंसर इतना आ रहा है, तुम्हारा कितना है। बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, एक कंपटीशन का, अटेंशन सीकर्स हम ही लोग अगर कोई काम करते हैं तो अटेंशन के लिए करते हैं, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, बहुत सारे ऐसे हैं कि आराम से पढ़ाते रहेंगे, वो जैसे ही प्रिंसिपल सर का राउंड लगा, हाँ भाई चलो, राइट। तो ये क्या है, एक क्या है, सब अटेंशन सीकर, प्रिंसिपल सर उनको देखेंगे, ओ अच्छा ये पढ़ा रहे, राइट। तो ये क्या है, दिस इज अटेंशन सीकर। तो बच्चे भी अटेंशन सीकर्स होते हैं। अब वो चाहते हैं कुछ न्यूसेंस एक्टिविटीज करेंगे क्लास में, तो आप इसलिए करते हैं ताकि आप उनको देख पाओ, आप उनके साथ बात करो। अगर कम्युनिकेशन गैप हो गया तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, एकदम कम्युनिकेट करते रहना चाहिए हमेशा, पॉइंट दर पॉइंट, कि हमें किस तरीके से बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना है। और वही अटेंशन सीकर की मैं बात किया, तो आप गलत करें वहां पे ताकि बच्चे सही करें उसे। जब वो सही करेंगे तभी वो सीखेंगे कि किस तरीके से गलत को सही किया जाता है, वरना सही चीजें तो सभी पढ़ा लेते हैं, नहीं, सही को गलत करके सही करवाओ, वो सबसे बड़ा पढ़ाई होता है। मतलब आप कॉन्सेप्ट दे रहे, बच्चों को सिखा रहे। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आप उसको हेल्प कर ले सकते हैं अपने आप। तो ये सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बच्चों को समझाए कि जैसे सपोज मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो मैं कभी कहता हूं, जब मैं 9th में था ना तो मेरे सर हमको ये बोलते कि तुमको बायोलॉजी का डायग्राम बिल्कुल नहीं आता। देखो भाई मेरे से डायग्राम नहीं बन पाता, तुम लोग जो है सो इस तरीके का बिहेवियर मत करो। जैसे केमिस्ट्री में मैं कुछ बना रहा हूँ, कोई डायग्राम बना रहा हूँ, तो वहां पे मैं बच्चों को पहले ही बोल देता हूँ, डायग्राम में ना, ड्राइंग में मेरा कभी ई से ज्यादा नहीं आता। बच्चे मेरे क्लास में ए लाते थे, मेरा ई से कम होता ही नहीं था, बहुत से बहुत होता था। अगर प्यार बहुत ज्यादा है मेरे को टीचर से या टीचर को मेरे से, तो डी दे देते थे, लेकिन बी सी कभी नहीं देते थे। बच्चा सब, हाँ सर आपको डायग्राम सही में नहीं आता, नहीं आता है भाई, तुम अच्छा करो जो तुमको अच्छा कहा जाए। तो दैट इज पर्सनल एक्सपीरियंस, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस उसको शेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने ये किया था तो बहुत गलती हुई थी मेरे से। अब किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं, मेरे बगल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मैं उनको अगर कभी पढ़ा देता हूँ तो मैं मैथ्स में मैं बोलता हूँ कि 90 डिग्री का एंगल बनाने में मेरे को 10 डंडा लगा था, बाकी सारे एंगल में बना लेता था, 90 डिग्री का एंगल मेरे से नहीं बनता था। सर सबसे आसान 90 डिग्री आपसे नहीं बना। हम बोले हाँ नहीं बनता था, तुम बताओ कैसे बनेगा, बहुत आता है तुमको तो बताओ। वो फटाफट बना के दिखा देगा, अरे सर को गलत करना। मैं, दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस, ये आप बच्चों के साथ शेयर करिए, ये बहुत सही चीज है बच्चों को सिखाने का, एक नए कॉन्सेप्ट को लाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग, ये कोऑपरेटिव लर्निंग इसमें इंक्लूडेड होता है कि बच्चों का सबसे पहले स्मॉल ग्रुप्स बना दें, और ग्रुप्स बना के आप उसको सेमिनार ले सकते हैं, उसका डिबेट करवा सकते हैं क्लास में किसी टॉपिक पे, और सबको बोलने का मौका दिया। जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, राइट, जीडी, बड़े बड़े एग्जाम्स में जीडी होता है, और उसमें से बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, बहुत को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो हम क्या करें, छोटे छोटे ग्रुप्स बना ले बच्चों का, और उस ग्रुप में बच्चों को कहें कि तुम्हारा ये टॉपिक है, तुम सबको इसमें बोलना, या तुम्हारा इसके साथ डिस्कशन होगा। जैसे एक बेंच का 4 आदमी। और एक ऐसा होता है जैसे हम आज कहते हैं कि कल तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, वो भी एक वे है। अब वो क्या सोचेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हम ले आ सकते हैं, दे सकते हैं बच्चों को, सर को देते हैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए। या फिर कहिएगा कि इतने ग्रुप्स, 5 ग्रुप है, ये आप सेमिनार देगा आपके सामने, आप लोग को जो भी क्वेश्चन हो आप इनसे पूछ सकते हैं। आप क्लास में है तो इनडिसिप्लिन बिहेवियर भी नहीं होगा बच्चों का,
और 1-to-1 बच्चे क्वेश्चन और आंसर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इनहैंस होगा, इंक्रीज होगा उनके नॉलेज में और उनके कॉन्सेप्ट में। ये सेकेंडरी लेवल पे सबसे बेस्ट आइडिया है। अगर किसी को नॉलेज सही से प्रोवाइड कराना है तो आपको स्मॉल ग्रुप्स में उनको सेमिनार लेना होगा। सेमिनार ले और सेमिनार लेने के बाद बच्चों को कहे कि आप ये टॉपिक पे पढ़ के आए और आपसे ये सारे बच्चे क्वेश्चन राइज करेंगे, आप टीचर हैं आज के लिए। तो बच्चा क्या करेगा, प्रिपेयर करके लाएगा या फिर दोस्त के साथ सेटिंग करेगा। भाई तुम पूछा तो हम तुमको नहीं बात करेंगे तुमसे, तुम नहीं पूछेगा, तुम पूछेगा, अगर नहीं पूछा तुमको ये खिला देंगे। वो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते, तुम्हारा असाइनमेंट लिख देंगे हम। लेकिन फिर भी आप ऐसा ना करें, आप ये कहते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा इस ग्रुप ने तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे या आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वो पूछेगा क्वेश्चन, वो तय है। तो उससे क्या होगा, बच्चे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और जितना इंफॉर्मेशन वो अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करेगा उतना ज्यादा उसका नॉलेज में इनहैंसमेंट होगा। दूसरा है हमारा क्विज करना क्लास में। कभी कभी ऐसा टाइम मिले मंथ में एक बार, एक पीरियड में आप किसी सेक्शन में क्विज करवा दें। जैसे मैं टीचर हूं, सारे टीचर सब दिन जो है सो लोगों को पढ़ाने का मूड नहीं होता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि हमें पढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं करता, कि आज मेरा मन नहीं है पढ़ाने का, आज बहुत थक गए, आज मेरा इतना क्लास हो गया, एक और क्लास है, इसमें क्या करूं, पढ़ाऊं। आपके हाथ में, आप क्लास को कितना ज्यादा इन्वॉल्व रख सकते हैं बच्चों को अपने साथ में। आपके पास बहुत वेज है, आप क्विज करवा सकते हैं बच्चों को, आप जो ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को, जैसे मैम ने बहुत सारे ग्रुप एक्टिविटीज करवाए बच्चों को। मैम ने दिया कि ये मॉडल बना के लाओ, है ना, इस तरीके का मॉडल। कुछ ग्रुप्स में बच्चों को कलेक्ट कर लिया, बना करके मॉडल बना के लाओ। इसमें क्या होता है, बच्चे सीखते हैं चीजों को, कि उसका काम है तुम ये करके लाएगा, तुम वो करके लाएगा, तुम वो करके लाएगा, और कलेक्ट करके सब कुछ। तो कलेक्टिव एफर्ट होना बहुत जरूरी होता है बच्चों का सीखने के लिए। दूसरा सिखाए, ऐसे थोड़ी ना होता है ऐसे करो, तो वो उसको सिखाएगा खुद ब खुद, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं सबसे बेस्ट दूंगा तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, या फिर मेरे को कुछ असाइनमेंट अच्छा मिलेगा, या फिर मैम मेरा ज्यादा अप्रिशिएशन करेंगे हमारे ग्रुप का। तो ग्रुप के नाम पे क्या होता है कि जैसे अभी हमारे स्कूल में डिसिप्लिन का एक बात निकला कि जिसका डिसिप्लिन जिस सेक्शन का सबसे अच्छा होगा उसके नाम से एक बुक जो है सो लाइब्रेरी में रखाएगा और सबका नाम लिखाएगा। बच्चे परेशान रहते हैं, ऐसा बोलते भी, सर वो सेक्शन का लड़का देखिए ना इतना इनडिसिप्लिन बिहेवियर करता, उसका तो नाम गया, उस सेक्शन का नाम होगा नहीं, हम लोग अच्छे से करते हैं तो हम लोग का कहीं नाम आ जाए। तो इस तरीके से एक कंपटीशन आ जाता है। जब ग्रुप लेवल में आप बच्चों को बांटोगे तो फिर खुद ब खुद उनको पार्टिसिपेशन में बहुत इंटरेस्ट आएगा। अगर इंडिविजुअल कहते हो तो हो सकता है वो बैकअप पे रहे, नहीं मैं नहीं। बहुत सारे लोगों को बोलने में कठिनाई होती है, वो बोलना नहीं चाहेगा। बोर्ड पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप कहोगे चलो तू बोर्ड पे आके सॉल्व करो, वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। वो कॉपी पे वो खुद बोलेगा सर हम कॉपी पे कर देंगे, कॉपी पे बना दे आंसर, वो क्या हो, वो बहुत। अब उनको हमें क्या करना है कि आजकल जो बहुत लेवल बोलता है, कोई पोएम करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो उसमें एक बच्चा को बोला आज तुम बोलेगा, तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी, तुम बोलोगे, बाकी सारे बच्चे तुम्हारे पीछे पीछे बोले। तो ये एक एक्टिविटीज है, हम सेकेंडरी लेवल में भी उसको कर सकते हैं कि किसी बच्चे को कहा कि तुम ऐसे करते हो, उसको मोटिवेट करना है कि तुम किसी चीज को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। अगर सपोज हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाने, तो एक सस्ता वाला रेस्टोरेंट है, एक बहुत ही महंगा है, चीजें दोनों सेम देते हैं, दोनों के इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है, राइट। अगर मैं कहूँ कि जैसे होटल ताज में अगर जाऊँ मैं कुछ किसी चीज को करने के लिए, कुछ खाना में चाय पीना है हमारे, तो वो क्या करेगा, हर एक तरह का लीव्स लाएगा हमारे। आपको क्या पीना है सर, दार्जिलिंग पीना है, लेप्चा पीना है, ब्लैक टी पीना है, कुछ भी, मिल्क टी पीना है, कौन सा टी पीना है। तो वो एक प्रेजेंटेशन हो, बड़ा सा टेबल में एक वेटर लेके आएगा आपके सामने, हॉट वाटर रहेगा। अब आप क्या कहोगे, वो प्रेजेंटेशन है उसका। तो स्टूडेंट में कितने बढ़िया से प्रेजेंटेशन स्किल को डेवलप करें, ये आजकल के टाइम का सबसे बड़ा डिमांड है कि प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। सी हमारे को सब कुछ आता है, वी नो मोस्ट ऑफ आवर थिंग, बट द मेन थिंग इज प्रेजेंटेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने सब्जेक्ट में बहुत पकड़ है, बहुत नॉलेज है। Our main aim to teach students कि कैसे वो चीजों को सीखे। हमें आता है तो हम अपना ज्ञान लेके अपने को क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमारा काम ही यही है, हमें बच्चों को सिखाना। अब कैसे सिखाएं, उसके लिए हमें अपने आप का प्रेजेंटेशन सही करना होगा कि हमारी प्रेजेंटेशन स्किल जितनी अच्छी होगी, अब मोटिवेट बच्चों को भी वैसे ही कर सकते हैं प्रेजेंट करने के लिए। तो जब वो प्रेजेंटेशन स्किल उनमें डेवलप होगा तभी वो क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर। इसके बाद है हमारा
टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी हो सकता है वीडियो ऑडियो लर्निंग मेथड, मतलब विजुअल लर्निंग मेथड बहुत ही बेस्ट मेथड है आजकल के। किसी चीज को हमको अगर उसको समझाना है, दिखाना है, तो आजकल का ऐसा आजकल टाइम चला हुआ है कि लोग वीडियोस ऑडियो से ज्यादा समझते हैं rather than ट्रेडिशनल अप्रोच। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे कहीं ज्यादा वो वीडियो ऑडियो से सीखते हैं। तो वीडियो विजुअल लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग आजकल के टाइम, प्रेजेंट टाइम। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन करना। जैसे हम किसी चीज को मान लीजिए अगर हम अपर प्राइमरी लेवल में है, हमें दिखाना है कि एसिड का क्या इफेक्ट होता है लिटमस पे। हम एक लिटमस एक छोटा सा पेपर है, हम उसको ले आके दिखा सकते हैं, छोटा सा लेमन जूस ले ले, बस कुछ नहीं करना। हम उसको कहते हैं कि इसमें सिट्रिक एसिड होता है, लेमन जूस है। हमने क्या किया, उसको लिटमस पेपर पे बिठा दिया। रहमान सर करते हैं कभी कभी क्लास में, है ना, बच्चे बताते कि आज सर ने ऐसे बताया, ये कलर चेंज हुआ, ऐसा कलर चेंज हुआ। तो उससे क्या होता है ना, बच्चों को वो जो डेमोन्स्ट्रेशन करने से क्या होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जगता है उस चीज के लिए और दे विल फील हैप्पी। आजकल बच्चे ना बार बार ये चीज यूज करते हैं, लैब में ले चलेगा सर, लैब में ले चलेगा। लैब में क्या, वही थ्योरी की बात पढ़ानी है लैब में भी, और कुछ नहीं पढ़ाना होता है। लेकिन क्या है कि उसका डेमोन्स्ट्रेशन लैब में किया जाता है। तो साइंस के लिए और लैबोरेटरी दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलता है। अगर कोई चीज हम पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए उसको डेमोन्स्ट्रेट करना भी जो नेसेसरी है। अब जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, उसको तो मैं लैब में नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसका एपरेटस इतना कॉस्टली आता है और पॉसिबल नहीं है उतना ज्यादा एनवायरनमेंट क्रिएट करना इधर, ये वजह है। लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं, उसको हम उसको लैब में ले जाके डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। बच्चे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा उनमें जगेगा। उसके बाद है हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। बच्चों को थोड़ा हट के, नॉट सब्जेक्ट मैटर, कुछ हट के उसको प्रोजेक्ट दे। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, उसको कहते एरोप्लेन बना, तो वो कागज का बना के दिखा देगा। और वो बड़ा हुआ, उसको कहेंगे तुम इस तरीके से कोई एरोप्लेन का मॉडल बनाओ, या फिर किसी और चीज का तुम प्रोजेक्ट तैयार करके लाओ, कुछ हट के दे। उससे क्या होगा कि हालांकि वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर वो 9th-10th में है तो उसको 12th और उसके ग्रेजुएशन की बातें हम कहें, उसको इस तरह के प्रोजेक्ट दे जो 9th से रिलेटेड हो, लेकिन थोड़ा हट के हो, ताकि उसको एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। तो आजकल के टाइम में एक्स्ट्रा नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए, तभी वो अपने लाइफ में आगे चल सकते हैं। और उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कहने का मतलब ये हुआ कि आप सब्जेक्ट से क्या होगा ना, उसको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा। हाँ भाई, ये ना इस साल में पूछा था, ये ना इस साल में पूछा था, तो आप एक आध क्वेश्चन उससे सब्जेक्ट मैटर आप करवाइए, देखिए बच्चों को भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा उनको पढ़ने में, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो यहाँ तक स्ट्रेटजी की बात हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि बी ह्यूमन विद स्टूडेंट्स। बच्चों के साथ जितना काइंड रहिएगा, जितना अच्छा बिहेवियर रखेगा और जितना ह्यूमन बिहेवियर रखिएगा, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा उसके साथ। आप उसको डांट के, फटकार के, दुत्कार के आप नहीं कर सकते कुछ भी, वो अचीव नहीं करेगा कुछ भी। अगर आप उसके साथ प्यार से बात करते हैं और अगर आपका नेचर बहुत अच्छा है उसके साथ, तो वो डेफिनेटली अच्छा करेगा। तो बस इतना बात था मेरा। आई होप सबको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर for your valuable speech on the topic strategies of teaching science in the secondary level. Actually, the way he had demonstrated, especially to correlate our teaching learning process with the students in an interactive method, and especially the using technologies and all these things, really he is demonstrating. It's time for us to distribute the certificates to those who had participated in this in-house training program. So for that purpose, I would like to call our respected principal sir to distribute the certificates to the participants. Mr. Then Anupam Kumari.
Anupama Kumari. Like to so a lot of thanks to our respected Manish Kumar Mayan sir to share his views on the given topic to him. Thank you.